ओके, थैंक यू श्रुति। तो यार सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, मेरे हिसाब से ज्यादा फ्रूटफुल और ज्यादा थोड़ा एंगेजिंग सेशन रखते हैं। तो 1 to 1 अगर कोई अपने आप को अनम्यूट करना चाहे तो अनम्यूट करके शायद बाकी कॉमन डाउट्स ही होंगे, तो 1 to 1 हम जो भी है, जो भी अपनी क्वेरीज वगैरह हैं, जो भी गाइडेंस है, एक बार 1 to 1 स्टार्ट कर लेते हैं। तो कोई भी आप में से पहले एक बार स्टार्ट कर सकता है, फिर हम बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे। हाय। या व्हाट्स योर नेम? या माय नेम इज मोहित एंड मुझे ये जानना है कि मेरे ऑडिट में 40 मार्क्स आए हैं। तो अभी काफ़ी कम मार्क्स हैं। तो मैंने सेल्फ स्टडी करी थी इस केस में। तो मुझे जानना है कि ओके। बेस्ट टीचर क्या आप सजेस्ट करोगे मुझे, जिससे कि मेरा, क्योंकि नवंबर में अटेम्प्ट है, तो तब तक अच्छा रिवीजन भी हो जाए मेरी और ऑडिट भी अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाए। Got your question, Mohit. So, for all the like South students, the question of Mohit is कि he has scored 40 in this attempt, and now he wants to excel this score. So he want to know कि how could he further increase his marks, and what would be the overall audit strategy for November 24th. So Vikalp, I guess it would be great कि आप इस क्वेश्चन को take up करो, and please try ऑडिट का to. एक्चुअली क्या हुआ था मेरे साथ में, नवंबर में मेरे भी 40 मार्क्स थे ऑडिट में। और अराउंड 38 मार्क्स आए थे जब मैंने आरटीआई मंगाई थी, एंड 2 मार्क्स ग्रेस थे जो सबको मिले थे। मेरी भी सेम सिचुएशन है ऑडिट में, बिकॉज मुझसे भी चीज़ें लर्न नहीं होती। तो मैंने इस बार स्ट्रेटेजी चेंज करी थी। लाइक 3 मंथ पहले, एग्जाम से 3 मंथ पहले मैंने डेली सुबह 3 आवर्स ऑडिट को दिए थे, जिसमें मैंने वेटेज रिवीजन लेक्चर चेक करे थे। 2 to 3 टाइम्स मैंने उनके रिवीजन लेक्चर देखे थे, बाद में नोट्स पढ़े थे। मैंने शुभम सर की बुक से ही पढ़ा था मेजर मैंने। तो वो नोट्स कर लोगे, 3 मंथ तक आप 3 आवर्स डेली दोगे ना, सफिशिएंट है आपके लिए। इजीली ऑडिट मैनेजेबल हो जाएगी, क्योंकि एंड तक आते आते आपको सब रिटेन हो जाएगा ऑडिट में। और उससे एंड प्रग्नेश सर के जो रिवीजन वीडियो है उसमें उन्होंने एमसीक्यू वाइज भी कराए हुए हैं, एमसीक्यू पॉइंट्स भी बता देते हैं कहाँ से एमसीक्यू बनेगा। तो वो इजी हो जाता है तुम्हारे लिए। तो ऐसे ऐसे ही मैंने 58 मार्क्स स्कोर करे थे प्रग्नेश सर की वजह से। सो आई गेस स्ट्रेटेजी तो विकल्प ने बता दिया, बाकी जस्ट टू सम अप ऑल द पार्ट, मोहित. So the teacher he suggested is Pragnesh Kanabar. You can take his classes directly from his website and from like other vendors as well. Baki, what would the overall strategy would be ki you have to be consistent in audit preparation. You have to devote fixed 2 to 3 hours daily from the day one of the preparation to audit. Uh, it would be help you to like first of all the audit is completely conceptual subject. It's not जैसा लोग कहते हैं, it's not completely कि यार rectification वाली subject है. So it is I guess 80 to 85% effort would be uh, should be going to conceptual clarity, and after then it would be for the retaining part and in the like sentence formation and what you have to write and what you have to in which way you have to present the things. So that's all. Baki Pragneshwar, and you have to give at least three hours daily from the start of preparation. Baki, if you are like skeptical about the teacher और आपको आप अगर अभी free classes नहीं लेनी है, then I would suggest कि there is May 23 Brahmastra series. You will find that in Pragneshwar YouTube channel playlist. तो वहां पर he has discussed each essay in very much detail. Uh, I have done my audit solely from that free content, and I've scored 49 in last attempt, and this time 42 easily on in audit. So you have to, if you are going through the free content only, so you have to just complete first the free Brahmas series of May 23, and after then for the new edition and content he has provided all that thing in November attempt as well. So it would be the overall strategy for audit. Anything further, Mohit, which you would like to know in with regard to this audit? Yes. So we would like to Yes, yes, quickly yes, close this. Yes, yes, yes. yes, Please. yes. I have covered this audit subject from the Kanabar sir's revision lectures also.
so I have covered Yes, many yes. type of chapters from there. But the 40 marks is very demotivating for me. So Okay. I do not know whether I have covered in the right way or not. So that is the Okay. problem with Got me. got your point. Got your point. So And and actually, and, and also and yeah, and also I am working also. So I'm a full-time in job. So that is the second issue with me. okay. So So Mohit, in that please sense, I would just like to know about yeah, yeah, audit. yeah. Just confirm me one thing. So have you done question practice in this attempt? Question practice means Like, if you have gone through the compiler of any teacher, like it could be of Pragneshwar or could be of another teacher, or you have just gone through the concepts. yeah, I have gone through the audit compiler of Hemant Somani. So not No, compiler, his book, and he has questions on. मोहित एक्चुअली ऑडिट में होता क्या है एंड व्हाट द स्पेसिफिक दैट आई वुड लाइक टू आंसर यू विद रिगार्ड टू योर मिस्टेक सो जस्ट बाय क्वेश्चन बैंक ऑफ Ravi Tawri sir of V Smart Academy. I have personally purchased that for my this May 24 attempt and it is super wonderful. And what benefit would you be getting there कि आपको सबसे पहले क्या मिलेगा कि जो आईसीआई की एक्चुअल लैंग्वेज है वो वहां पर कट शॉर्ट बिल्कुल नहीं की गई है और क्वेश्चंस काफी सारे कवर्ड है एंड आई वुड सजेस्ट यू टू कवर दैट क्वेश्चन बैंक एटलीस्ट इन completely in your first and second revision, and for the third and fourth revision if you will able to go to the third or fourth revision I guess आपको करना भी चाहिए, थर्ड रिविजन तो जरूर जाना चाहिए particularly in audit. So you have to mark ABC category for the questions if you are like stucking in some specific question mark that is in A category. अगर आपको सी कैटेगरी का क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ ठीक है दैट इज इजीली मैनेजेबल तो उसको आप सी कैटेगरी मार्क कीजिए so that you will be creating gradually a compiler your own compiler for the 1.5 days of preparation. So you have to just revise only A category question in 1.5 days. So the overall approach you should be कि आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन बैंक परचेज करना है and then after you have to holistically cover the complete QB in your first and second revision, because I have like noticed in my last two attempts that questions of past attempt matters so much in audit subject, and most importantly you will get to know what you have to write in the particular way. And the other part of your question कि you are working, so I would suggest कि जैसा I have मैंने बोला you have to devote at least 3 hours, 2.5 to 3 hours daily to audit if you want to excel in audit. There is no shortcut, buddy. इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं हो पाएगा. You have to first focus on concepts and then to equally you have to focus on questions also. Sir, I will have the next conversation, sir. Yeah, Neil ji, बताइए. Sir, I can speak only in English, sir. I can't Yeah, understand sure. Hindi, sir. Sure, Sir, no issue. very thankful. I'm thankful for this conducting this meeting, sir. Just a minute about my past things, sir, to get your advice. Sir, I'm having two kids, sir, two twins. I'm age of 35 years old. So I have started my CA final career after 13 years, sir. I'm 2011. I should have passed in 2011, sir. And again, I have started the career just 2 months before, sir. This is my past background, sir. Second thing, I came to know about you in the today's morning, and I have joined the Telegram, sir. My query is, sir, I wanted to start my CA career again in the. I want to start begin the career, and I have started with law subject, sir. I came to about to know to you, sir. Sir, on 31st of July, I have my attempt, sir, law, SPOM. Till now, I did not prepare any thing on the subject, sir. And I got a gap of 13 years over the subject pattern, sir. I have studied Companies Act 1956, and now I have been studying all the new acts, sir. This is my past thing, sir. Coming thing, 31st July, I have the law, and second, I have to clear the costing subjects in the self-paced. My query is, sir,
how should I pass through for law subject? Since I have two kids, I have to maintain them. I am only left up with 6 hours per day, sir. Starting from today, if I start from today, will that, so for example, 15 days into 6 hours, 90 hours is available for me, sir. Is it sufficient to clear law exam, sir? Perfectly sufficient, Anilji. Don't have to worry. Uh, Sir, we have it is like we are happy to share we have cracked SPOM very well, so it would not be issue for you to hustle there. So Vikalp, I guess you should take up this question as an overall strategy for Set A and Set B. I guess that would be question for many as well. So please consider this as a holistic approach how they have to manage Set A and Set B. What would be the resources अगर उनके पास थोड़ा कम time है, if they have some 2 or 3 days left, what they have to do, and if they have sufficient time, so what lectures they have to follow, and please consider Anil's approach as well. Baki, so first of all, for the SPM Saturday, we have released a detailed video of guidance, and I will send that in group after this meeting again. And in the description of that video, we have shared a Already compiler shared. of 400 plus questions and the overall strategy. So what the overall strategy should be like, you have to first, Anil, that is this is completely customized to you as you have been reading the old material. So first, I guess first of all, you have to complete the revision lectures of teachers. Either it could be of Harsh Gupta sir or it could be of Shubham Singhal sir. And if you are facing any difficulty in the language, like if you are facing any language barrier issue, so yes, someone sir. in group, please गाइड की अगर कोई इंग्लिश का कोई टीचर हो, if there could be an English teacher, so please guide in the comment section or in group as well. So you have to just first complete the revision lecture of any faculty, and that would hardly take 2 to 3 days if you are devoting 6 hours daily. That would be three-day content only. After then, you have to just go through a summary book of Shubham Singhal sir. That would be very enough to pass. And after then, you have to use our compiler of repeated question. I am just confirm. I am surely saying this in this meeting. Pass. You will be passing this time if you will take this approach very consistent. Thank you. Thank you. Thank you very much, Sure, sir. sure, One sure. thing, sir. Sir, one thing, sir. One kind question, sir. Yeah. One kind question. Because of the determination and because of the passion in the course again, I have joined the CA final, sir. But Yeah, yeah. uh, but because of all the other circumstances, many people are demotivating not to join the course and to leave the course. But I wanted to join again and clear the complete curriculum, sir. Can you provide any few good points at this point of time uh, 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 to continue at this moment, sir? Okay. So it would be, I guess, behavioral part, more of the motivation part. I guess the answer is your determination. Determination. If you have thought of this to complete final at this level, you will surely going to complete this. I have seen people of your age as well, and some older than you as well. And I have a person in my exam center as well of I guess 52 or 53 plus age. So he was determined, and he has just completed the CA itself. So I guess personal motivation is the only thing that would be going to help you in thing. And Baki, I would surely recommend. I would share a dedicated motivation, a line or video from Bhagavad Gita as well, and that had helped me as well in my preparation, and that would be going to help you surely. Surely, Anilji, Thank you. I Thank you. would take Thank you. this. Thank you. I Thank, I will thank I will share all the resources.
Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Sure, I will sure, connect Ranjit. your Telegram, sir, for any Sure, doubt, sir. Please sure, respond, sir. Please, sir. sure. अरे sure, 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 Ranjit. Okay. Thank you, sir. Thank you. Anyone, please? हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज़ ऑडिबल है? हाँ जी, perfect. जी। विकल्प एंड मनमोहन, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो टू यू एंड थैंक्स कि हम लोगों को ये आपने अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आके आपको पूछ सकें जो भी हमारे सवाल है। अब पहले बात तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली मैंने अभी अटेम्प्ट दिया था एंड आई गॉट माई रिजल्ट्स राइट नाउ। तो उस केस में क्या हुआ कि मेरा फर्स्ट ग्रुप जो है वो एग्रीगेट 12 मार्क्स से रह गया। आई एम पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स एंड सेकंड ग्रुप में ऐसा हुआ कि सेकंड ग्रुप का मैंने प्रिपरेशंस प्रॉपरली नहीं कर पाया था ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, लेकिन मैंने आईबीएस प्रिपेयर करके आईबीएस मेरा एग्जाम हुआ है। तो अब बेसिकली हो क्या रहा है कि मतलब इट्स लाइक कि सम सॉर्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट वगैरह ऐसी चीजें हो रही है। तो एग्जैक्टली मुझे ये समझ नहीं आ पा रहा है कि अगर अब रीस्टार्ट या शुरुआत जो करनी है वो किस तरीके से करनी चाहिए एग्जैक्टली। तो क्या आप मतलब उस पर थोड़ा गाइडेंस दे सकते हैं कि भाई किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए और एग्जैक्टली क्या कवरेज होना चाहिए और किस तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? Vikalp, I guess this would be your question. This would हाँ be answer to your November attempt overall strategy कि I guess अभी आपके 3 या 4 महीने बचे हैं, तो आपने को कैसे इसको कंसिडर करना है और क्या अप्रोच रहनी चाहिए? प्लीज टेक दिस क्विक. आशीष, मेरे साथ भी यही हुआ था। नवंबर में मैं भी अराउंड 15 to 20 मार्क्स से रहा था एग्रीगेट में। वैसे क्लियर हो गया था मेरे, बट एग्रीगेट में रह गया था। तो आपको अब जैसे अब 3 मंथ्स और 3.5 मंथ बचे हैं, तो आपको अभी 1 या 2 दिन बैठ के पहले तो सारे मटेरियल प्रिपेयर करो कि आपको आने वाले 3 मंथ में कौन कौन से मटेरियल कैसे क्या करना है। क्योंकि मैंने देखा था कि एग्जाम से कुछ दिन पहले भी बच्चे किसी दूसरे टीचर का मटेरियल रेफर करते हैं, कभी किसी और टीचर का रेफर करते हैं। वो सबसे गलत है। सबसे पहले मटेरियल को एक पहले सेग्रीगेट कर लो कि आपको कौन सा मटेरियल पढ़ना है, कौन सा क्या करना है। And वो you have to बहुत be हेल्पफुल होगा। confident फिर on that. उसके You बाद have to आप, be confident on that. हम्म। हाँ, एंड आपको फिर उसके बाद प्लानिंग करनी है। लाइक मैंने क्या करा था कि लाइक मेरे 3 मंथ बचे हैं, तो मैंने ऑडिट तो सुबह कर लिया था। मैंने 7 to 11 डेली 3 मंथ के लिए 3 आवर्स मैं ऑडिट पढ़ता था। उसके बाद आफ्टर 12 मैं 6 to 7 आवर्स देता था अदर सब्जेक्ट को। तो मेरे पास क्या था, लाइक मेरा आईबीएस एग्जाम था, तो आईबीएस का इकोनॉमिक लॉ एग्जाम था। तो उसके बाद मेरे 5 सब्जेक्ट बचे थे। ऑडिट मैं डेली सुबह करता था, तो उसके लिए मैंने अलग से टाइम नहीं दिया। तो रिमेनिंग मेरे 4 सब्जेक्ट बचे थे। 4 सब्जेक्ट को मैं डेली, मतलब ऐसे था कि पहले 1 सब्जेक्ट एफआर कंप्लीट करा, फिर मैंने एएफएम कंप्लीट करा। तो 4 सब्जेक्ट मेरे फर्स्ट रिवीजन मेरे अराउंड मेरे 45 to 50 डेज में कंप्लीट हो गया था फर्स्ट रिवीजन। हम्म 4 सब्जेक्ट का मैंने बिल्कुल डिटेल करा था फर्स्ट रिवीजन। सेकंड रिवीजन और कट शॉर्ट करके मैंने 30 डेज में कंप्लीट करा था। देन ऐसे आप करोगे तो अराउंड 2 to 3 रिवीजन आपके इजीली हो जाएंगे, और ऑडिट पे भी आपकी ग्रिप आ जाएगी इजीली क्लियर करने की। क्योंकि ग्रुप 1 में मेजर फेल ऑडिट ही कराता है। बाकी सब्जेक्ट में आप 50 तक ले आते हो, बट ऑडिट में 40 भी नहीं ला पाते। इसलिए हम्म ऑडिट पे ग्रिप बना लो। एक बार ऑडिट पे कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो एफआर और एएफएम आप इजीली क्लियर कर सकते हो। और आशीष, तो ऑडिट मतलब ये में जैसा 5 सब्जेक्ट जो पढ़ना है वो पॉसिबल है? अभी हमने पहले भी बोला, ऑडिट में आपका अप्रोच क्वेश्चन बैंक का भी रहना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस का, एंड द वे यू हैव टू राइट इन योर मेन एग्जाम, इट शुड बी इन योर अप्रोच फ्रॉम द डे वन. करेक्ट। ओके। तो जैसे कि अभी मतलब आप मतलब जिस तरीके से समझा पा रहे हो, तो मतलब ये मैं समझ सकता हूँ कि मतलब 5 सब्जेक्ट करना पॉसिबल है इन हाँ, दिस बिल्कुल है. टाइम, हाँ, मतलब एटलीस्ट, और 2 रिविजन्स हो सकते हैं ऐसा लाइक? हाँ, इजीली हो सकते हैं। मैंने भी 3 मंथ्स दिए थे और 500 सब्जेक्ट करे हैं मैंने भी। तो ओके इजीली मैंने भी अच्छा स्कोर करा है, 409 मार्क्स हैं। तो 3 मंथ में इजीली कर सकते हो तुम भी। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइस। और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी का आप कोई वीडियो लाने वाले हैं क्या इस हाँ, दौरान आप? सब्जेक्ट लाइक वाइज एक अलग से पोस्ट आप कर देंगे हम. मैंने आज ही देखा था, आकाश कंदोई सर ने एक प्लानर डाला है 12 डेज का एफआर का। तो आप हाँ। ऐसे वो प्लानर यूज कर सकते हो। पहले क्या स्टडी करनी चाहिए हमको, पहले क्या करना चाहिए। बाकी हम हम्म वीडियो देख सकते हैं एक इफ डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे यार, हम भी देखते हैं कि बाकी लोगों ने डाला है, तो अ, ऐसा है कि दे आर मोर लाइक एक्सपीरियंस देन अस, तो जो भी कोई बेटर होगा, जो भी प्लानर हम्म दैट वुड, आई गेस जो प्रैक्टिकल थोड़ा ज्यादा होगा, वी वुड लाइक टू इनकॉर्पोरेट दैट
आउट ऑफ ऑल द थिंग दैट जो भी बेस्ट होगा उसको हम इंकॉर्पोरेट करते हैं और आपके पास एक जल्दी ही एक वीडियो के साथ एक डिटेल रिसर्च पैटर्न के साथ आते हैं विद सब्जेक्ट वाइज स्टडीज। दैट्स ग्रेट, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइस। ओके, चलिए Hello. विकल, हाँ Hello. जी। Actually, I have not started DT and IDT classes. So I have given in May 24 attempt and I have lost by 20 marks. So it's better to give two groups now for November 24 or just do with group one. So you have given only group 2 in May 10. Yeah, only group one Okay, and group 1 classes are completed and now Yeah, you are left with DT and IDT. classes. Yeah. Okay. So Vikalp, I guess she is in same situation like we had in after the November 23 attempt. इसमें आपकी क्लासेस कब तक पूरी हो सकती है, कुछ आइडिया? आपने कोई क्लासेस No, परचेज की हो? no, I haven't taken yet. I'm planning to take after 21. On 21, I'm having a costing exam. Okay. तो So like 1.5 what is your like confidence level on group 1? So like how much time or how much preparation I guess like what you think you require for on group 1? I have to focus more on audit. FR and AFM I can manage. So that's the reason I'm confused, like whether to give two groups or one. आई गेस आपको क्लासेस तो ले लेनी चाहिए, क्लासेस खत्म कर लो सबसे पहले। ओवरऑल फर्स्ट टारगेट शुड बी टू कंप्लीट द क्लासेस ऑफ डीटी एंड आईडीटी बाय एनी हाउ बाय 31st August or 1 week before. Anyhow, Okay. DT, you should be completing all the classes by 31st August, and along with you have to take the group 1 revision with the classes. And after then, you have Oh, to decide कि आपका grip कैसा है, what is your overall grip on DT and IET. And I would suggest कि आप DT का class ले रहे हो, so go with the end of like there are like kind of batches in market, exam oriented batch or fast track batch, whatever you could say. So there is a fast track batch of Akshans Garg sir for IDT. I guess he completes entire IDT in 80 to 90 hours, Vikalp, I guess. हाँ 90 आवर्स। 90 hours. okay. And the same thing either for BB sir or yes sir. So you can easily complete the entire classes by 25th or 25th of August. So you just focus. You have to focus first on entire group 1 revision plus on the classes of DTIDT classes by 31st August. And after then, uh, you have to assess yourself कि अभी आपका uh, क्या आपका स्ट्रेचर है या फिर क्या व्हाट वाज योर ओवरऑल ग्रिप ऑन द सिलेबस, then accordingly you would be in better position to decide whether you have to appear in for both or single. Can you बाकी suggest आप good means faculty name for DT and IDT? Yeah, we can write this in Akshansh Garg, and for DT BB Bhavar Borana sir or Yash Khandelwal sir. Okay, Banwat Borana sir, exam oriented batch can I take because I Yeah, have not, yeah, yeah, I'm yeah, not. yeah, yeah. Yeah, you have to take that only that batch. Okay, Akansh Garg. Okay. Yeah, I Okay. have like I have sent a meeting, the next meeting invite in the chat box. Please join through it. This is expiring in 1 minute. Okay. As you have said that Ravi Tauri sir book is good for audit, so there Yeah, is a full set book postman. available. So Yeah, that is enough, right? yeah, perfect. For question bank, for questions, Yeah. everything. That one book is enough. Uh, if you are like able to actually, I have personally managed the concept book of Pragnesh sir with the question bank of Ravi Thauri sir. So I guess that Okay. would be a better combo अगर आप दोनों को अलग अलग मैनेज कर सकते हो। Okay. Thank you. Hello. So would like
anyone want to take any further question, or we should start with the spreadsheet? So first question was to कि either both group देना चाहिए या single group देना चाहिए. So अभी I guess last question से हमें मनमोहन, कुछ आंसर तो मिल गया कि आप अभी भी sufficiently कर सकते हो cover. ऐसा कुछ नहीं है अभी आप cover नहीं कर सकते. So you can very well cover the thing currently as well. For group one and group two बाकी if you think कि you are not able to manage both groups in November, so I would suggest go for at least group one. Don't skip. Okay. विकल्प एक क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, मैंने स्प्रेडशीट में भी देखा एएफएम के रिगार्डिंग, और दोनों का ही हमारा स्कोर काफी अच्छा रहा है. तुम्हारा 82 रहा है ना एएफएम में? 86 मेरा। हाँ 86 एंड आई गॉट 71 इन एएफएम. तो क्या अप्रोच रहनी चाहिए, कम टाइम है तो क्या करना चाहिए, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए? रिवीजन वीडियो की बताओ, क्योंकि क्लासेस जनरली सब बहुत काफी पहले ले चुके होते हैं आर्टिकलशिप के टाइम, तो फर्स्ट रिवीजन भी कैसे स्टार्ट करें ओवरऑल एएफएम के लिए? आफ्टर देन वी विल टेक दिस द सेम क्वेश्चन फॉर एफआरएस. एएफएम में एक्चुअली मैंने किसी क्वेश्चन बैंक रेफर करी थी अजय सर की, क्योंकि वो कंसाइज है. कभी देख सकते प्रतीक जगाती सर है, क्योंकि मैंने रिवीजन लेक्चर मेनली प्रतीक जगाती सर के रेफर करे थे. तो आप देख सकते हो कि मैंने अराउंड 3 रिवीजन करे थे एएफएम के, एंड रिवीजन लेक्चर मैंने फर्स्ट रिवीजन में देखा था खाली प्रतीक जगाती सर के. बाकी 2 रिवीजन मैंने खुद ही नोट से पढ़ के सेल्फ स्टडी करा था मेन तो. एंड आपको एक स्ट्रेटेजी रखना है क्वेश्चन बैंक में कि आप फर्स्ट टाइम तो आप बिल्कुल डिटेल करोगे क्वेश्चन बैंक को, एंड उसमें मार्किंग करोगे ए बी सी. सी मार्किंग मत करना, चलो ए और बी मार्किंग करना. एंड ए में तो आप बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट, और जिसको आप बिना सॉल्यूशन देके आप सोल्व ही नहीं कर पा रहे वो उसको ए मार्किंग में रखना. बी में जो आपकी मिस्टेक्स हो रही है, सिली मिस्टेक्स हो रही है, वो रखना. सेकंड रिवीजन में आपको ए एंड बी दोनों कैटेगरी करनी है, प्लस में सी कैटेगरी जो अदर क्वेश्चन बचे हैं उसमें से आप सैंपल बेसिस पे बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन चेक कर लेना, जैसे आपको आइडिया हो जाए कि आप वो क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो आपको आ भी रहे हैं नहीं आ रहे. थर्ड रिवीजन में आपको ओनली ए कैटेगरी करना है और बी के सैंपल बेसिस पे क्वेश्चन करना है, वो सफिशिएंट हो जाएगा आपको. एएफएम के क्वेश्चन लर्न हो जाए. एंड सेम क्वेश्चन की एफआर के साथ, एफआर काफी बड़ा सिलेबस होता है, तो एफआर को कैसे मैनेज किया जाए. और लास्ट 1.5 वो लाइक एफआर में तो हम आई गेस 6 डेज दे सकते हैं, तो एफआर के लिए हमारी क्या और स्ट्रेटेजी होनी चाहिए विद रिगार्ड टू फर्स्ट रिवीजन एंड टू द लास्ट थर्ड रिवीजन? एफआर में एक्चुअली मैंने एग्जाम से पहले मेरे पास टाइम कम था तो मैंने 4 डेज दिए, बट एक्चुअली 5 to 6 डेज तो देने पड़ेंगे आपको एफआर को, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे दिक्कत हो गई थी एफआर में. 4 डेज में मेरे कोर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए आपको अराउंड एग्जाम से पहले 5 to 6 डेज, तो 6 डेज दोगे तो आपका डिटेल रिवीजन हो जाएगा एग्जाम से पहले, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है. बाकी फर्स्ट रिवीजन में अराउंड आपको 12 to 15 डेज देने हैं, जिसमें एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आकाश कंदोई सर का प्लानर है, उसको आप वैसे यूज करो कि किस सीक्वेंस में एफआर करें हम, वैसे मत आप उस सीक्वेंस में एफआर को करो तो सफिशिएंट है. आपको थोड़ा टाइम लगेगा फर्स्ट रिवीजन में, अराउंड मुझे भी 15 डेज तक लगे थे एफआर में, काफी वास्ट है. तो 15 डेज फर्स्ट रिवीजन में डिटेल्ड करो तो बहुत ही सेकंड रिवीजन में आपको कम टाइम लगेगा, अराउंड 11-12 डेज. और थर्ड रिवीजन जो आप करो वो या तो आपके पास टाइम है ठीक है, नहीं तो एग्जाम से पहले जो भी 6 to 7 डेज दोगे आप, वो उसमें एफआर आपके इजीली बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर है. आप एफआर में कुछ ज्यादा अच्छे से मेहनत कर सकते हो तो एफआर मैनेजेबल हो एंड जाता है. एफआर इज स्कोरिंग एज वेल. आपका ग्रुप वन कोई भी एग्रीगेट बचाना है तो दैट वुड बी एफआर ओनली. एएफएम का पेपर हो सकता है कि कभी कभार ऊपर भी चला जाता है, लाइक दैट वाज इन May 23 attempt, that was a super attempt for AFM. बाकी एफआर विल बी द गेम चेंजर सब्जेक्ट फॉर यू. सो जैसा विकल्प ने बताया कि यार आपको फर्स्ट रिवीजन में भी एबीसी कैटेगराइजेशन करके चलना है, ओवरऑल प्लानर आप आकाश कंदोई के सर का फॉलो कर सकते हैं. दो दो बार मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है. वी वुड हम कोई अलग चीज नहीं बताएंगे. हिज प्लानर इज गुड फॉर एफआर. इसके अलावा फॉर द लास्ट मिनट रिवीजन आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि आप जय चावला सर का एक चार्ट बुक आता है, अगर फ्री वर्जन चाहिए तो यू कैन टेक द सॉफ्ट कॉपी. बाकी आई वुड सजेस्ट कि वो आई गेस
It is around 400 or 500 rupees. You just have to order that from V Smart Academy. तो उससे क्या होता है कि आप जब 6 दिन लास्ट में पढ़ते हैं FR, तो जो लास्ट का आधा दिन या एक दिन बचता है, सो यू स्टार्टेड थिंकिंग कि यार क्या था, इम्पेयरमेंट याद करने लगते, इंडेक्स 36 में क्या अपर था, क्या लोअर था, क्या हायर था. सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. So it would be very helpful for you in the last one day of revision or before the exam as well, if you have the chart book handy in your hand. So get the chart book there from the website and go through that in before your exam, 3 or 4 hours before the exams. विकल्प एक क्वेश्चन है कि डीटी आईडीटी लिया नहीं है, so अभी he hasn't taken the DT IDT classes, and he wants to like score exemption in IBS. So what would be the overall approach with group 1? इफ आपने DTIDT क्लासेस नहीं ली तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा आईबीएस में वैसे तो, बट क्योंकि क्योंकि डीटी वेटेज आईडीटी का अराउंड, काफी वेटेज है. हाँ अराउंड डीटी का ही अराउंड 20 मार्क्स का वेटेज है आईबीएस में, एंड आईडीटी का भी अराउंड 15 मार्क्स का वेटेज होगा, 35 मार्क्स का वेटेज है डीटी आईडीटी का। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की क्लास ले सकते हो, आईडीटी की क्लास ले सकते हो आपको लेना है तो, जिससे आईडीटी का आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग नॉलेज हो जाएगा तो आप आईबीएस में मैनेज कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आईबीएस में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट हाँ आप ग्रुप 2 भी फिल कर सकते हो, वैसे भी आपका अटेम्प्ट लगेगा ही जब आप ओनली वन ग्रुप दोगे। तो आईबीएस के लिए एक बार ट्राई कर सकते हो, मे बी एग्जामिशन इजी पेपर आ जाए और मेन ग्रुप 1 से ज्यादा वेटेज आ जाए तो यू कैन इजीली मैनेजेबल। Okay. और बाकी I guess you have to give sufficiently 15 days for DT IDT, and you can cover that from revision videos. बीबी सर के, भंवर बुराना सर के रिवीजन वीडियोस हैं, और अक्षांश घर के आपके पास रिवीजन वीडियोस हैं. बुक तो आप परचेज करने वाले हो एनीवे, बीबी सर का कॉम्पैक्ट और अक्षांश घर का समरी बुक. सो 15 दिन दो, give 15 days for DT IDT both, and just listen to the revision videos so that you can get an overall idea कि पूरे सिलेबस में कौन सा पार्ट कहाँ पर है और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. ज्यादा एफर्ट भी नहीं डालना है, बट यू कैन ट्राई फ्रॉम द रिवीजन वीडियोस एंड द प्लेन like quick reading of the book that you are carrying for the IBS. Okay. Any particular question? Okay. विकल्प आई गेस स्प्रेडशीट से 1-to-1 क्वेश्चन ले लेते हैं. थोड़ा हाँ टिक मार्क भी करते चलते हैं. मैं एक बार स्क्रीन शेयर प्रेजेंट कर लेता हूँ. आई गेस काफी सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, मेरे को टाइम नहीं मिला सेग्रीगेट करने का. बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप देना चाहिए. सो वी हैव आंसर्ड दिस ऑलरेडी. लकी प्राजक्ता का क्वेश्चन था कि स्टडी ऑडिट को कैसे स्टडी करना है. वी हैव कवर्ड दिस. IBS एंड ऑडिट बोथ हो गया. ऑडिट स्ट्रेटेजी डन. AFM के रिवीजन वीडियोस प्रतीक जगाती सर, और आपको क्यूबी फॉलो करना है, अजय अग्रवाल सर का फॉलो कर सकते हो. बाकी AFM में ओनली द प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस जितना करोगे दैट वुड बी वेरी फ्रूटफुल जितना. एंड बाकी आपको ABC कैटेगराइजेशन स्टार्टिंग से करके चलना है. SCM NCP MP और लो के इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो SCMP के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वी हैव कवर्ड दैट इन आवर कंपाइलर ऑलरेडी. बाकी लो का ऐसा कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है नहीं. कहीं भी तो वो निधि कंपनी को पूछ लेते हैं, कभी गवर्नमेंट कंपनी से 12 क्वेश्चन पूछ लेते हैं. सो वहाँ कुछ भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसा कुछ नहीं है. यू हैव टू कवर द इंटायर सिलेबस. बाकी यू कैन लीव एनी सिंगल चैप्टर, एक चैप्टर से ज्यादा नहीं. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यू कैन कवर ओनली सिंगल, यू कैन like miss only one chapter, and for that chapter also you have to cover the questions at least from the compiler. इसके अलावा CA फाइनल के बहुत ग्रुप है, सेकंड अटेम्प्ट है, कैसे स्टार्ट करना है प्रतिमा जी, इसका हम आपको 2 या 3 दिन में सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी दे देंगे. सो यू कैन फॉलो दिस, यू कैन फॉलो दैट. युवराज सिंह SPM सेट भी यार अभी करते हैं अपडेटेड और अपडेटेड. पुष्पा जी
regarding preparation for both groups, I went started my class DT and IDT how to prepare. ये हो चुका है क्वेश्चन, DT IDT का 31 अगस्त तक कंप्लीट करो, साथ में ग्रुप 1 आप उसके साथ टारगेट करो, उसके बाद आप अपना असेसमेंट खुद करिएगा कि अभी आप जब तब आपकी क्या सिचुएशन होती है। सिंगल और बोथ ग्रुप वही सेम क्वेश्चन, अगर ज्यादा ही परेशानी है तो एटलीस्ट एक ग्रुप जरूर देना, अटेम्प्ट स्किप बिल्कुल मत करना, एक एक करके निकालो, कोई इशू नहीं है। बाकी आई वुड सजेस्ट कि आप क्लासेस कंप्लीट करो सबसे पहले और उसके बाद आप कैरी ऑन करो। निकिता निकिता का क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने बोला है कि उनका एएफएम एग्जाम्प्ट है, हाँ तो आपको मेरे हिसाब से तो बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहिए, क्योंकि आपके एएफएम एग्जाम्प्ट है तो आपको ऑडिट में अराउंड 3 to 4 3 डेज मिल जाएंगे स्टडी करने के लिए, 3 और 3.5 डेज, तो आपके लिए ऑडिट बहुत ही मैनेजेबल हो जाएगा। एंड एफआर तो वैसे ही फर्स्ट एग्जाम होता है, तो एफआर को आप पहले 5 to 6 डेज दोगे तो दोनों ग्रुप 1 इजीली मैनेजेबल हो जाएगा आपके लिए। आपके लिए मेन ग्रुप 2 होगा, वो ग्रुप 2 की तैयारी थोड़ा अभी से ही करोगे तो बोथ ग्रुप मैनेजेबल है। अभी 3.5 मंथ है, आप कर सकते हो इजीली। हाँ बिल्कुल हो सकता है। Okay. Anyone else would like to take would like to ask any other question, or we will wind up this session? बाकी मैं अपना बता देता हूँ कि अराउंड मैंने क्या क्या मटेरियल रेफर करा था। अराउंड मैंने सीए फाइनल के लिए ओनली 10 बुक्स ही रेफर करी थी, पूरी ओनली 10 बुक्स में पूरे सीए फाइनल के एग्जाम दिए थे मैंने। एफआर में मैंने क्वेश्चन बैंक रेफर करी थी अजय सर की। मैं क्लासेस का नहीं बता रहा, मैं बुक्स की रेफर की बता रहा हूँ। मैंने अजय सर की बुक क्वेश्चन बैंक रेफर करी थी, नोट्स भी मैंने अजय सर के ही रेफर करे थे, बट कुछ कुछ चीज के लिए लाइक मैंने प्रवीण जिंदल सर से क्लासेस ली थी तो उनके नोट्स रेफर करे थे, क्योंकि अजय सर के काफी कंसाइज नोट्स हैं। अगर आपको समझ नहीं आते तो आप एक बार आकाश कंदोए सर के भी देख सकते हो। एएफएम में भी मैंने सेम अजय सर के रेफर करे थे। एंड थर्ड जो ऑडिट है उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, प्रगनेश सर के रिवीजन लेक्चर, प्लस में आपके पास जो भी बुक है आप उससे ही पढ़िए। एसए और पी को ज्यादा वेटेज देना। डीटी में मैंने यश सर की क्लासेस ली थी, यश खंडेलवाल सर की। उनके क्वेश्चन बैंक भी एक है, उनके कॉन्सेप्ट बुक भी एक है, तो वो इजीली मैनेज हो सकती है। एंड आईडीटी मैंने अक्सान सर से ली थी, वो भी 1 कॉन्सेप्ट बुक है एंड 1 क्वेश्चन बैंक है, तो वो भी मैनेज हो सकती है। ऐसे 10 बुक्स में मैंने पूरा सी फाइनल का कवर करा था एंड आई स्कोर 409 मार्क्स। सो किसी और को कुछ क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकते हैं। Sir, can you please post that subject-wise book you have referred in the chat box, sir, so that I'll copy paste in my notes, sir. Okay, I will share on Telegram group also. Okay, sir. Thank you, sir. Anyone else? Any other? Okay. Just confirm in chat box if you all are done with your question. Okay. I think हो गया। Yeah, I received in DM as well. Okay. So it's okay. So let's wind up this session. So thank you guys for joining and for listening to us. But we thought I guess it would be fruitful for you all. शायद कुछ हेल्प कर पाए होंगे, बाकी नहीं तो अगले सेशन में देखें।